quiz number 6. The topic is work energy methods. So it can be either principle of work and energy or the conservation of energy. जो भी आप अप्लाई करना चाहें उस प्रॉब्लम को देखते हुए आप रेलिवेंट प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं. वैसे भी मैं तो आपसे चूंकि एमएस फॉर्म्स पे ही क्विज ले रहा होता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको दिए जाए आप उसको वर्क एनर्जी से सॉल्व करें. अगर आप समझते हैं कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन से हो सकता है तो आप उसे भी कर सकते हैं. आई नीड द आंसर इन एमएस फॉर्म, सो आपने आंसर लिखना है उसमें, वो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं. बट जनरली आपको जो प्रॉब्लम दिया जाएगा दैट इज मोर डायरेक्टली सॉल्व यूजिंग द वर्क एनर्जी मेथड्स. तो आप अगर लंबा मेथड अप्लाई करना चाहें कोई बाइंडिंग नहीं होगी. ठीक है. Yes, sir. ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर टुडेज लेक्चर, ताकि आज के कुछ हम क्विकली 2-3 प्रॉब्लम्स करें इम्पैक्ट के, और उसके बाद फिर जो है वो हम आज का क्विज कंडक्ट कर लेंगे. स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम 15-9 इन विच वी हैव अ बैग ए. Its weight is given to us as 6 pounds and it is released from rest at a position when theta is equal to 0 degrees. So it is being released from position A as shown in the figure. After falling to theta equal to 90 degrees, this box or this bag strikes a box which has a weight of 18 pounds. If the coefficient of restitution between the bag and the box is given to you as 0.5, you need to determine the velocities of the bag and box just after impact and the loss of energy during the collision. So आपके पास एक बैग है जिसको आप रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं पॉइंट ए से. ये स्विंग करता करता जब 90 डिग्रीज कवर कर लेता है तो इट इज गोइंग टू स्ट्राइक दिस बॉक्स. You need to determine if the coefficient of restitution is 0.5, then after collision what is going to be the velocity of both these particles and what is the loss of energy during this collision. I hope that the question is clear to all of you. Yes sir. Yes, sir. Okay, so once theta is equal to 90 degrees, it means के इस बैग की पोजीशन कुछ यहाँ आ जाएगी. So once it has covered to theta equal to 90 degrees, what is going to be the velocity of this bag A? In what direction? Under root 2 GH to the left. मैं सिर्फ अभी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ. It has covered theta equal to 90 degrees. So as per our understanding, a particle is moving along a curved path. So what would be the direction of that velocity? Sir, to the left along the x-axis. Okay, along the negative x-axis. So it is going to be the direction of velocity. Line of impact जो बनेगी, it should be this line of impact. So is the velocity in the direction of line of impact? Yes, sir. So is it a case of central impact? Yes, sir. So it is a case of central impact if theta is equal to 90 degrees. What about if theta is equal to 45 degrees? 45 का क्या मतलब है कि मेरे पास ये बॉक्स यहाँ पड़ा हुआ था. अब क्या केस है? सर इसमें टेंजेंट इंक्लाइंड बनेगा. इसमें ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है. This is going to be the line of impact. So since the velocity was at some angle with respect to the line of impact, so that was a case of oblique impact. This problem when theta is equal to 90 degrees is going to be a case of central impact. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, so when this point is clear to all of you, let me clear this figure again and focus on the problem which is given to us. Okay, how we are going to solve it? Any idea? Sir, initial velocity दोनों bodies की मालूम करेंगे पहले. It means that first of all we need to find out the velocity with which this bag is striking this block, isn't it? Sir. कैसे find करेंगे? सर बैग तो रेस्ट से शुरू हुआ तो सर उसकी इनिशियल 0 होगी और सर जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो भी रेस्ट पे है. नहीं देखिए वो तो रेस्ट पे है, लेकिन ये बैग कितनी वेलोसिटी से इसको हिट कर रहा है वो वेलोसिटी हमें चाहिए, ताकि हम प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम जब अप्लाई करें उसमें तो हमें वो चाहिए होता है ना कि जस्ट बिफोर कोलिजन क्या कितनी मोमेंटम था और जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा. सो जस्ट बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम फाइंड करने के लिए वी नीड टू हैव द वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग दिस ब्लॉक बी. सर ए की वेलोसिटी सर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हम फाइंड कर सकते हैं. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल वुड बी मोर easier to apply since there is no non-conservative force. सर लेकिन ये स्ट्रिंग मुझे तंग कर रहे हैं ना सर, उसके समझ नहीं आ रही. क्या तंग कर रहे हैं सर? वो जो तार सी है मतलब. देखिए तार में क्या आता है? टेंशन. यस सर.
तो टेंशन हम कंसिडर करते हैं वर्क एनर्जी के लिए? नो सर। तो फिर टेंशन की वजह से टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। हाँ सही है सर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अप्लाई, हम चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज मोर कन्वीनियंट टू अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ऑन दिस बैग ए बिटवीन पोजीशन 1 जो का जहां से रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है एंड टू द पोजीशन जहां ये जाके इसको स्ट्राइक कर रहा है जस्ट बिफोर कोलिजन। सो क्विकली हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम पोजीशन 1 डिफाइन कर रहे हैं व्हेन दिस बैग इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज। पोजीशन 2 हम डिफाइन कर रहे हैं जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, और पोजीशन 3 हम डिफाइन कर रहे हैं जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। तो ये तीन पोजीशंस जो है वो हमने डिफाइन कर दी हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ऑन दिस बैग बिटवीन पोजीशन 1 एंड 2 जहां से रेस्ट रिलीज कर रहे हैं टू जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, टेकिंग डेटम एट पोजीशन 1। इस पोजीशन को हम एज अ डेटम ले लें। The conservation of energy principle says that T1 plus V1 should be equal to T2 plus V2. Initially चूंकि रेस्ट से रिलीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। चूंकि पोजीशन 1 को ही हमने A को हमने डेटम डिफाइन किया है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो हो गया। राइट साइड पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी हाफ mv स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चूंकि पोजीशन 2 लाइज बिलो डेटम तो नेगेटिव हो जाएगी, -w into 3। So I hope that V2 equal to 13.9 feet per second is clear to all of you. ये तो हमारा पिछले उसका रिवीजन है, Yes, sir, जिसमें clear आपका क्विज भी होना है। Okay, now this is the velocity with which this bag is going to strike the block. Now coming to the central impact steps. In the first step of central impact, we are going to apply the conservation of momentum principle along the line of impact, taking positive towards the left. So the initial momentum of block A and B should be equal to the final momentum of block A and B just after collision. Initially block B was at rest, so इसका momentum हमने 0 ले लिया। block A का momentum होगा m into velocity जो हमने find की थी 13.9. After collision, both these velocities VA3 and VB3 are not known to us, so we are going to get one equation in terms of VA3 and VB3. Is this step clear to all of you? Yes, Yes, sir. ओके, सेकेंड स्टेप में क्या किया कि हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन अप्लाई की। ऑलरेडी हमें गिवन था दैट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर दिस कोलिजन इज 0.5. सो अप्लाइंग द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन, इट सेज दैट VB3 minus VA3 over VA2 minus VB2. इसमें अगेन ये VB2 हमारे पास 0 है, VA2 हमारे पास 13.9 है। सो पुटिंग द वैल्यूज वी आर गोइंग टू गेट अ सेकेंड इक्वेशन in terms of VA3 and VB3. Solving these two equations simultaneously will give me the value of VA3 and VB3, which comes out to be -1.74 and 5.21. What does this negative sign indicates VA3 के साथ? सर राइट साइड पे इसकी डायरेक्शन है। इट मीन्स के ये जो बैग है कोलाइड होने के बाद ये राइट साइड पे जो है वो मूव करेगा, जबकि ब्लॉक जो है वो कोलिजन के बाद टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ 5.21 फीट पर सेकेंड। सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Okay, now what should be the loss of energy during this collision? The loss in kinetic energy. That's correct, क्योंकि देखें जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन तो लेवल सेम है। इट मींस के पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। इट मींस द ओनली चेंज व्हिच इज अकरिंग वुड बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज। तो अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज फाइंड आउट कर लें तो वही आप कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद को सब्ट्रैक्ट कर दें, यू कैन गेट द लॉस ऑफ एनर्जी व्हिच कम्स आउट टू बी 10.1 पाउंड फिट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है 15-9 में? टाइम हमारे पास कम है इसलिए मैंने अलग से सोल्यूशन लिखने के बजाय जो सोल्यूशन हुआ था उसको एक्सप्लेन कर दिए। तो सर क्लियर है, सिंपल था काफी। चलिए सिंपल सा था। ओके, मूविंग टू a slightly complex problem. In this example you have a ball B which has a mass of 1.5 kg and is suspended from the ceiling by a 1 meter long elastic cord. ठीक है, so आपके पास ये जो बॉल है इसका mass आपको given है and it is being suspended from ceiling using a elastic cord having a stiffness of 800 newtons per meter. ठीक है, if the cord is stretched 0.25 meters
आपने किया क्या कि इस कॉर्ड को 0.25 मीटर्स मजीद स्ट्रेच किया एंड द बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और उस पॉइंट से आपने बॉल को रेस्ट से रिलीज किया. डेफिनेटली दिस बॉल इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द सीलिंग, इट इज गोइंग टू स्ट्राइक द सीलिंग एंड देन इट इज गोइंग टू रीबाउंड बैक. So you need to determine how far will the cord stretches after the ball rebounds from the ceiling. कि कितना मजीद ये बॉल इम्पैक्ट होने के बाद इस कॉर्ड को स्ट्रेच करेगी जब ये रिबाउंड होगी. स्टिफनेस आपको कॉर्ड की गिवन है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द सीलिंग फॉर दिस कोलिजन इज गिवन टू यू एज 0.8 and the ball makes a central impact with the ceiling. Why this ball is making a central impact with the ceiling? सर along the string वापस रिस्पॉन्स ही होगा. ठीक है, तो इट मींस के अगर मैं ये कंसीडर करूं सीलिंग को एट द टाइम ऑफ कोलिजन, दिस इज गोइंग टू द मैस सेंटर. सो चूंकि ये बॉल इस तरह स्ट्राइक करी है, सो इट इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ सेंट्रल इम्पैक्ट. हाउएवर अगर स्ट्रिंग ना लगा होता, सपोज मैं आपसे कहता कि आपके पास एक बॉल है जिसको आप थ्रो कर रहे हैं सीलिंग की तरफ इस डायरेक्शन में, अब ये कौन सा केस बन जाता? ओब्लिक. अब ये ऑब्लिक इम्पैक्ट का केस बन जाता. तो आपने अगेन बॉल वही है, सीलिंग वही है, लेकिन फेंकने का डायरेक्शन अगर सिर्फ मैं चेंज कर दूं तो यही चीज मेरे पास ऑब्लिक इम्पैक्ट हो जाएगी. सेंट्रल इम्पैक्ट के केस में क्या होगा कि यहां से जाके ये इसी डायरेक्शन में रीबाउंड होगी. ऑब्लिक इम्पैक्ट के केस में क्या होगा कि यहां से जाके ये इस डायरेक्शन में रीबाउंड हो जाएगी. तो आपका सेंट्रल और ऑब्लिक इम्पैक्ट के केसेस जो है वो डिफरेंट बन जाएंगे. यहाँ जो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, इट इज अ केस ऑफ सेंट्रल इम्पैक्ट. आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. यस सर. ओके, अब जब भी आपके पास कोई सीलिंग या वॉल इन्वॉल्व हो तो आपका सेंट्रल इम्पैक्ट या ऑब्लिक इम्पैक्ट की एनालिसिस में वो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला प्रिंसिपल है, यानी स्टेप नंबर 1 जो है वो आपका अप्लाई नहीं होता. क्या वजह है उसकी? सर इसलिए क्योंकि वो सीलिंग के साथ कर रहे हैं. तो क्योंकि सीलिंग की फाइनल वेलोसिटी 0. नहीं, सीलिंग की तो 0 होगी. सीलिंग का मैथ पता है आपको? सर वही सीलिंग के मास वेलोसिटी इस तरह के पैरामीटर्स नहीं एग्जिस्ट करते नहीं हमारे गिवन ना. पास. तो दैट्स व्हाई जब भी आपके पास इम्पैक्ट किसी लार्जर बॉडीज यानी सीलिंग में यानी सीलिंग वॉल या अर्थ के साथ हो, तो आप उस सूरत में स्टेप नंबर 1 अप्लाई नहीं करते, बिकॉज स्टेप नंबर 1 में मोमेंटम इन्वॉल्व है और मोमेंटम के केस में आपके पास मैसेज आते हैं जो कि आपको नहीं पता. सीलिंग का पूरा मैस इन्वॉल्व नहीं होगा, कोलिजन में उसका एक छोटा सा पोर्शन इस्तेमाल हो रहा होगा. सो स्टेप नंबर 1 इस किस्म के केसेस में आप इस्तेमाल नहीं करते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. सो सॉल्व किस तरह करेंगे? अगेन मैं पोजीशंस डिफाइन कर रहा हूं. पोजीशन 0 में डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम वेयर द बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. पोजीशन 1 डिफाइन की जा रही है जब वो सीलिंग के साथ इंपैक्ट करने वाली हो. पोजीशन 2 डिफाइन की जा रही है जस्ट आफ्टर इंपैक्ट फ्रॉम द सीलिंग. और पोजीशन 3 डिफाइन की जा रही है व्हेन द कॉर्ड is maximum stretched after the ball is being rebound from the ceiling. So ये 4 पोजीशंस जो है वो मैंने डिफाइन की हैं. सबसे पहले पोजीशन 0 और 1 के दरमियान में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के इस बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूंगा कि कितनी वेलोसिटी के साथ इस सीलिंग को स्ट्राइक कर रही है. फिर 1 और 2 के दरमियान में मैं ये वाला इम्पैक्ट वाली इक्वेशंस अप्लाई करूंगा और उसके बाद 2 और 3 के दरमियान में दोबारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकता हूं. इज दिस point clear to all of you? Yes sir. Okay, so starting our solution, first of all applying the conservation of energy between position 0 from where the ball is being released from rest to position 1, that is just before striking. T0 plus V0 should be equal to T1 plus V1. डेटा में पोजीशन 1 के ऊपर डिफाइन करता हूं. इट मींस के काइनेटिक एनर्जी मेरे पास T0 0 हो गई. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलास्टिक पोटेंशियल दोनों इसमें इन्वॉल्व होगा. सो पोजीशन 0 के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा. और कितना नेगेटिव होगा? माइनस W टाइम्स डेल्टा वाई. W आपका 1.55 इंटू 9.81 आ गया. डेल्टा वाई क्या होगा? 1.25. सर जो दोनों 0 और 1 के दरमियान का डिस्टेंस है. जी बिल्कुल. तो 1 ऑलरेडी इस कॉर्ड की लेंथ थी, आपने मजीद 0.25 इसको स्ट्रेच किया तो टोटल 1.25 हो जाएगा. इसी तरह स्प्रिंग का पोटेंशियल क्या होगा जब अपनी अनस्ट्रेच पोजीशन से वो 0.25 मीटर स्ट्रेच हुआ हुआ है? इलास्टिक पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. मैग्नीट्यूड हाफ के एस स्क्वायर, इजंट इट? यस सर.
Yes. तो ये आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल आ गया हाफ के एस स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी आ गई half mv square. So this is how you can find out the velocity, which is equal to 2.97 meter per second, with which the ball is going to strike the ceiling. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you are going to apply the impact equations between position 1 and position 2. और जैसे अभी बात हुई है सीलिंग इन्वॉल्व है, तो स्टेप 1 अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन जो है वो हम अप्लाई करेंगे. दैट सेज दैट VB2 माइनस VA2 ओवर VA1 माइनस VB1. जहां जहां वॉल आ रही है या सीलिंग आ रही है उसकी वेलोसिटी जिस तरह अभी डिस्कस हुआ था वो जीरो हो जाती है. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि कितनी वेलोसिटी के साथ ये बॉल रिबाउंड होती है. सो VB2 कम्स आउट टू बी minus 2.37 meters per second. The negative sign indicates कि आपके पास जो है वो बॉल जो है वो डाउनवर्ड ट्रेवल कर रही है after the rebound. Is this point clear to all of you again? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Now you are going to apply the conservation of energy again between position 2 and position 3. So T2 plus V2 should be equal to T3 plus V3. Datum आप position 2 पे define करें जो कि सीलिंग वाली पोजीशन है. So हाफ mv स्क्वायर ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसमें वेलोसिटी हमने वो इस्तेमाल कर ली जो कि उसके स्ट्राइक के बाद थी, जो कि हम डेटम पोजीशन 2 पे डिफाइन कर रहे हैं. सो V2 आपके पास 0 हो गया. जब मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुकी होगी तो मोमेंटेरली द काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू 0. तो T3 आपके पास 0 हो गई और V3 वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ Vg3 प्लस VE3, दैट इज द ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं तो पोजीशन 3 जो है वो पोजीशन 2 से जो डेटम है उससे बिलो लाई करती है. तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा. कितना नेगेटिव होगा? माइनस W टाइम्स डेल्टा वाई. तो ये आपके पास डेल्टा वाई आ गया विच इज 1 प्लस S3 होगा जितनी भी स्ट्रेच होती है. इसी तरह स्प्रिंग का पोटेंशियल हाफ के S स्क्वायर होगा. सो वंस यू सॉल्व इट द वैल्यू ऑफ S कम्स आउट टू बी 0.237 मीटर. सो इतना स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा आफ्टर द फर्स्ट रीबाउंड. फिर डेफिनेट बात है कि इस स्ट्रेच की वजह से बॉल दोबारा वापस आके सीलिंग पे स्ट्राइक करेगी और ये मोशन चलता रहेगा जब तक कि एनर्जी इसकी जीरो नहीं हो जाती. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कोई चीज जो आप पूछना चाहें? No, sir. Clear. ओके, एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क आप प्रॉब्लम 15-59 जो है वो खुद सॉल्व करेंगे. वो भी सेंट्रल इम्पैक्ट की है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम ऑब्लिक इम्पैक्ट जो है उसकी एनालिसिस देखेंगे और फिर रिजिड बॉडी की काइनेमेटिक्स देखेंगे. सो आई होप दैट द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल इम्पैक्ट एंड इट्स एनालिसिस प्रोसीजर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. चलिए तो let us stop today's lecture here. Let me stop the recording of today's lecture. और उसके बाद we are going to move